Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 16 of this playlist Dynamic Programming, we are going to learn shortest common super sequence of in dynamic programming. Okay, so अभी तक हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी लेक्चर्स देख लिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, सबसे पहले हमने नैपसैक प्रॉब्लम देखी थी, स्टैंडर्ड नैपसैक, फिर उसमें उसके जितने भी वेरिएशंस होते हैं हमने सारे देख लिए थे. ठीक है, उसके बाद हम LCS में आए. LCS हमने जितनी भी अप्रोचेस हो सकती थी LCS को सॉल्व करने की विद रिकर्जन एंड DP दोनों देखी. ठीक है, उसके बाद हमने LCS की लेंथ कैसे निकालनी है, फिर LCS को प्रिंट कैसे करना है ये देखा. ठीक है, और एज ऑलवेज अब हम LCS के जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वो सारी देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएशन ऑफ LCS यू कैन से शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. ओके फाइन. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद उसको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, फिर कोड लिखेंगे. ठीक फाइन, बट obviously before this let's just see what is Newton School. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which provides you different programs which have different programs for you. First is their pay after placement program, okay, in which they will make you a full stack developer, and after making you a full stack developer they will also get you placed in different companies which they have tie up with, like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, Unacademy, and there are many more. Okay, so as you can see also that their application for full stack development course is also starting. For September batch is open, so you can just come to newtonschool.co and apply now. Okay fine, and under their pay after placement program you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, second program they have for you is Launchpad, under which they are providing you different courses absolutely for free. You can also form quizzes, you can also go for quizzes here, you can participate in contests and win exciting prizes and job opportunities, and you will also get certificates on completion of any of the courses. Okay fine, and third program they have for you is most amazing master's degree program. Okay, so if you want to do your master's degree from abroad via online mode, so you can just go to this master's degree program, and to know more about it you can just go to the link in description, that is Hitesh bit.ly Hitesh15. Okay fine, and one more thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School in YouTube, just go and subscribe this YouTube channel where we are placing videos regularly so that you can get content for free every day. Okay, just go and subscribe this, and now let's just begin our today's video, that is shortest common super sequence. So first thing we need to understand is what is super sequence. Okay, तो अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी है, ठीक है, मैथ्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि सपोज यू हैव टू सेट्स, सेट A एंड सेट B. ओके, एंड सपोज इन सेट A you have 1, 2 and 3, and in set B you have 2, 4 and 6. तो अगर आपको इन दोनों का सुपर सेट बनाना है, सुपर सेट ऑफ A एंड B, दैट इज सुपर सेट ऑफ A एंड B, तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के भी एलिमेंट्स होंगे एंड B के भी एलिमेंट्स होंगे. तो इफ आई हैव टू राइट सुपर सेट ऑफ A एंड B, आई विल सिंपली राइट 1, 2, 3, 4 एंड 6. आप अब इसमें सिंपली देखोगे सुपर सेट में A के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दैट इज 1, 2, 3, 1, 2, 3. ठीक है, B के भी सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दैट इज 2, 4, 6, 2, 4, 6. एंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर सेट. इन द सेम वे देयर इज सुपर सीक्वेंस. ठीक है, दो सीक्वेंस होंगे हमारे पास, उन दोनों का एक ऐसा सुपर सीक्वेंस बनाओगे तुम. ठीक है, जिसमें सीक्वेंस A भी होगा, सीक्वेंस B भी होगा. ठीक है फाइन. नाउ आवर टास्क इज टू मेक शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. शॉर्टेस्ट मीन्स वी हैव टू मिनिमाइज दिस थिंग. हमें इस सुपर सीक्वेंस को मिनिमाइज करना है. ठीक है, हमें मिनिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है जो हम बना सकते हैं सच दैट उसमें सीक्वेंस A एंड सीक्वेंस B दोनों आए. ठीक है फाइन. नाउ लेट मी जस्ट क्लियर दिस, एंड नाउ आई विल रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. I have two given sequences. Find the shortest common super sequence. Okay, so find the shortest common super sequence means
I have to find only length of shortest common super sequence. Okay, right now we are going to find shortest common super sequence length only, and in next video we will see how we can print it. Okay, so जैसे कि हमने LCS में देखा था, पहले हमने लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाली थी, उसके बाद हमने सिंपली उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं ये देखा था. ठीक है, तो राइट नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस एंड उसके बाद हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं ये. ठीक है, ओके. सो नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ सुपर शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. ओके, तो ये देखते हैं. सपोज आई हैव टू सीक्वेंस A B C D. ये मेरा सीक्वेंस X है और यू कैन से स्ट्रिंग X. स्ट्रिंग Y मैंने बोल दी B D E F. ठीक है, अब मुझे X और Y का एक सुपर सीक्वेंस बनाना है, तो मैं लिख दूंगा A B C D E F. यू कैन सिंपली चेक ए बी सी डी चारों के चारों आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं. बी डी ई एफ आ रहा है, हाँ बी डी ई एफ आ रहा है. ठीक है, तो आई कैन सिंपली से कि ये मेरा एक सुपर सीक्वेंस है ऑफ सीक्वेंस एक्स एंड वाई. ठीक है, फाइन. अब मुझे इसी चीज को मिनिमाइज करना था. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम सेइंग कि ये शॉर्टेस्ट है. जस्ट एज्यूम कि ये शॉर्टेस्ट कॉमन सब सुपर सीक्वेंस है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सुपर सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस. ओके, सुपर सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया होता क्या है. फाइन, अब इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6. सो मेरा आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 6. ठीक है, फाइन. अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई भी दो सीक्वेंस गिवन है. ठीक है, मुझे x और y कोई भी दो सीक्वेंस गिवन है और मुझे सबसे इजीएस्ट वे में मुझे क्या करना है, इसका एक सुपर सीक्वेंस बताना है. ओके, मुझे एक सुपर सीक्वेंस बताना है. देयर इज नो कंडीशन लाइक कि मुझे शॉर्टेस्ट करना है या लॉन्गेस्ट करना है. ठीक है, देयर इज नो कंडीशन कि मुझे शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट बताना है, मुझे बस एक सुपर सीक्वेंस बताना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट x प्लस वाई विल ऑलवेज बी अ सुपर सीक्वेंस ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस. कैसे? अगर मैं सिंपली लिख दूं ए बी सी डी. ठीक है, फिर उसके बाद ये लिख दूं बी डी ई एफ. This thing will always be a super sequence of x and y. Why? क्योंकि x उसमें always स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज ABCD. ठीक है, और y जो है दैट इज BDEF will always be present in end. है ना, फाइन. सो आई कैन से दैट अगर इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है मान लो n और इसकी लेंथ है m. ओके, तो सपोज लेट्स जस्ट से दैट आई हैव टू स्ट्रिंग्स x एंड y. इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, और ये मेरे पास a b c d है, और ये मेरे पास b d e f है. ठीक है, आई कैन से कि आई हैव अ सुपर सीक्वेंस ऑफ लेंथ m प्लस n ऑलवेज. इतना लेंथ का सुपर सीक्वेंस मैक्स टू मैक्स मेरा बनेगा. ठीक है, इससे बड़ा सुपर सीक्वेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है. मिनिमम मैक्सिमम इतना लेंथ का सुपर सीक्वेंस ही पॉसिबल है. ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम ये तुम कह सकते हो. ठीक है, मिनिमम इतने लेंथ का मिनिमम का हो. ठीक है, क्योंकि मिनिमम इतने लेंथ का सुपर सीक्वेंस तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं. ठीक, फाइन. सुपर सीक्वेंस बनेगा क्या, ए बी सी डी बी डी ई एफ. फाइन. नाउ सेकेंड थिंग जो मुझे देखनी है कि अब मुझे यही m प्लस n लेंथ के सुपर सीक्वेंस को क्या करना है, शॉर्टेस्ट बनाना है. शॉर्टेस्ट बनाने के लिए सिंपली मुझे करना क्या होगा, मुझे कुछ रिडक्शन करना होगा. रिडक्शन करना होगा किस चीज का, वेस्ट आइटम का. वेस्ट आइटम इस सुपर सीक्वेंस में हो क्या सकता है, सिंपली कॉमन सेंस लगाओ. वेस्ट आइटम क्या होगा, जो कैरेक्टर्स फालतू में मोर देन वन टाइम्स आ रहे होंगे, है ना, फाइन. तो वेस्ट आइटम क्या हो सकता है,
जो कैरेक्टर्स मोर देन वन टाइम आ रहे हैं मेरे सुपर सीक्वेंस में और उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है फाइन। अभी तक के लिए हमें इतना समझ में आ गया, सब क्लियर है। अब मैंने सिंपली शुरुआत में क्या बताया था कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किसका है, LCS का। LCS का वेरिएशन है, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब ये चीज तुम्हारी क्या इसमें कहीं पे यूज आ सकती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं क्या LCS को इसमें कुछ कर सकता हूं, LCS का यूज इस रिडक्शन में कहीं पे कर सकता हूं, क्योंकि अगर कहीं पे भी यूज आएगा LCS का तो वो रिडक्शन में ही आएगा, है ना। क्योंकि बाकी का जो प्रोसेस था मेरा M+N वाली चीज वो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं ना। M+N का सुपर सीक्वेंस मैं ऑलरेडी हमेशा फॉर्म कर सकता हूं। मेन प्रोसेस जो मेरा रह गया शॉर्टेस्ट बनाने के लिए, मुझे करना है कुछ रिडक्शन, जो मैं कर सकता हूं LCS का यूज करके। कैसे, अब वो देखते हैं। सिंपली जस्ट एक इंट्यूशन देता हूं तुम लोगों को कि जो भी LCS है दोनों स्ट्रिंग का, ठीक है, LCS ऑफ X एंड Y, वी कैन रिड्यूस दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम माई सुपर सीक्वेंस दिस। वाई, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इस बारे में सोचो, ठीक है। अब मैं बताता हूं ऐसा होगा क्यों। बिकॉज जब हो क्या रहा है, जब मैं M+N लेंथ की दोनों स्ट्रिंग यहां पे लिख रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं ये देखना, ठीक है। मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, X और Y है, मान लो दो स्ट्रिंग्स मेरे पास X और Y है। उसमें होगा क्या, तीन पॉसिबिलिटीज है। कुछ कैरेक्टर्स X में होंगे, सम कैरेक्टर्स C', ठीक है, जो X में होंगे बट Y में नहीं होंगे, ठीक है। फिर कुछ कैरेक्टर्स आएंगे C', जो X और Y दोनों में होंगे, ठीक है। फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आएंगे जो X में नहीं होंगे बट Y में होंगे, ठीक है फाइन। अब मेरे पास तीन तरह के कैरेक्टर्स होंगे जो इस तरह होंगे, जो कुछ X में होंगे Y में नहीं होंगे, X और Y दोनों में होंगे, X में नहीं होंगे, X में होंगे, Y में नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह के तीन टाइप्स के कैरेक्टर्स आएंगे। बट एग्जैक्टली जब मैंने M+N पूरा लिया, ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या, मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग X लिखी ABCD, फिर मैंने स्ट्रिंग B लिख दी BDEF। तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या, अब ये देखते हैं। कैरेक्टर B देखो, B, ठीक है, D, ठीक है, खाली ये दोनों कैरेक्टर्स थे जो दोनों में थे, है ना। दैट इज C, ये वाले कैरेक्टर्स जो X में भी हैं और Y में भी है। तो मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को कितनी बार लिखा, BD। मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को जो X और Y दोनों में है, इनको मैंने 2 टाइम्स लिखा, फाइन ओके। अब बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स जो X में और Y में नहीं है वो कौन से हैं, A और C, ओके। तो ये A और C, दैट इज दिस कैरेक्टर, इनको मैंने कितनी बार लिखा, 1 टाइम लिखा, फाइन ओके। फिर कुछ कैरेक्टर्स जो B में है, दैट इज Y में है और X में नहीं है, वो कौन से हैं, E और F, ये वाले, इनको मैंने 1 टाइम लिखा, फाइन। तो जो मेरी मेन सुपर सीक्वेंस स्ट्रिंग है, जो मैं सुपर सीक्वेंस बना रहा हूं, उसमें सारा का सारा कैरेक्टर एटलीस्ट 1 टाइम तो आना ही चाहिए, तभी वो एक सुपर सीक्वेंस बनेगा। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है फाइन। अब मुझे कुछ वेस्ट मटेरियल निकालना था, तो वो मैं वेस्ट मटेरियल कौन सा निकाल सकता हूं, यू कैन इजिली सी फ्रॉम हियर, दैट इज दिस थिंग, क्योंकि ये 2 बार आ रही है ना। जो कैरेक्टर X में भी है और Y में भी है, फाइन, अगर मैं उसको अपनी सुपर सीक्वेंस में खाली एक बार लिखूं, दैट कैन वर्क फॉर मी। वाई, क्योंकि वो काइंड ऑफ X के लिए भी यूज में आ जाएगा और Y के लिए भी यूज में आ जाएगा, ठीक है। मुझे 2 बार उन कैरेक्टर्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली सी दैट इज जो कैरेक्टर्स B और D दोनों में है, मैं उनको 2 बार ना लिख के सिर्फ एक बार लिखूं, दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर मी। वाई, आई हैव ऑलरेडी शोड यू दैट थिंग। अगर मैं यहां से B और D कोई भी हटा दूं, मैं ये B और ये D हटा दूं, तो अब क्या ये मेरा सुपर सीक्वेंस रह जाएगा, सिंपली
जस्ट चेक दैट। हाँ रह जाएगा। ए बी सी डी क्या इसमें है? अगर मैं यहां से बी और सी हटाने वाला हूं, बी और डी है ना, तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, ए बी सी डी बी डी ई एफ। आई एम सेइंग कि जो भी इनका एलसीएस है दैट इज बी एंड डी, ठीक है। मैं उसको हटा सकता हूं यहां से। मैं उसको हटाने के लिए सिंपली कोई भी बी डी ऐसे नहीं हटा सकता हूं, ऑब्वियसली मुझे जो सीक्वेंस का ऑर्डर है वो भी बचाना पड़ेगा, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ये वाला बी हटा दूं अगर, ठीक है, मैंने ये वाला बी हटा दिया और लेट से मैंने ये वाला डी हटा दिया, डी तो दोनों कोई भी हटा लो, ठीक है। अब देखो तुम सिंपली ए बी सी डी है, हाँ ए बी सी डी है, ए बी सी डी, बी डी ई एफ है, हाँ बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ। तो यू कैन से कि आफ्टर रिमूविंग एलसीएस फ्रॉम दिस m प्लस एन स्ट्रिंग, मेरा सुपर सीक्वेंस अभी भी रिटेन्ड है पूरा का पूरा। फाइन। तो ये एक लॉजिक था कैसे तुमने एलसीएस को शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में यूज किया। फाइन। तो जब भी तुम m प्लस एन का सुपर सीक्वेंस लिख रहे हो, m प्लस एन लेंथ का, तुम करते क्या हो एग्जैक्टली, तुम ऑल द कैरेक्टर्स जो x में है y में नहीं है वो लिख रहे हो, एलसीएस को 2 बार लिख रहे हो, ठीक है। एलसीएस एक बार तुम्हारा जब स्ट्रिंग x में था तब तुमने लिख दिया, और एक बार जब तुम्हारा स्ट्रिंग y में था तब भी तुमने लिख दिया, और फिर तुमने वो वाले कैरेक्टर्स लिखे जो x में नहीं है बट y में है, ठीक है। तो तुम एक बार एलसीएस को वहां से हटा सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेन क्वेश्चन का फंडा, ठीक है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। अब अगर मैं कंक्लूजन दूं इस पूरे क्वेश्चन का, तो तुम्हें शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकालने के लिए मेनली करना क्या होता है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकालने के लिए तुम्हें मेनली सिंपली करना क्या होता है, सपोज यू हैव 2 स्ट्रिंग्स x एंड y, ठीक है, इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली m प्लस n। ये जो तुम हमेशा मिनिमम पॉसिबल लेंथ जो तुम्हें लगने ही वाली है, ठीक है, शॉर्ट सुपर सीक्वेंस की मिनिमम पॉसिबल लेंथ, इससे छोटी तुम आई गेस कभी नहीं, मिनिमम पॉसिबल इतनी तो लगेगी, ठीक है। इससे तुम क्या कर सकते हो, एलसीएस हटा सकते हो। फाइन। तो यू कैन ऑल्सो से दैट m प्लस एन इज योर मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, ऑब्वियसली, है ना। m प्लस एन तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है, इससे बड़ा आंसर सुपर सीक्वेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो मैं मिनिमम बोल रहा था, तो तुम उसे काइंड ऑफ मैक्सिमम भी बोल सकते हो कि तुम्हारा जो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस है दैट इज एससीएस, इसका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर विल ऑलवेज बी m प्लस एन। इससे बड़ा आंसर तुम्हारा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें खाली इसको रिड्यूस करना है क्योंकि तुम्हें शॉर्टेस्ट चीज निकालनी है, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो भी इन दोनों स्ट्रिंग्स में है उसकी लेंथ माइनस कर दोगे, और तुम्हें ये जो कंप्लीट चीज है ये चीज दे देगी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। फाइन। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एलसीएस का कोड टॉप डाउन अप्रोच से आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड यू इन प्रीवियस वीडियोस, जस्ट गो एंड वॉच दैट, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा एलसीएस का कोड लिख जाएगा, एलसीएस के कोड से तुम्हें एलसीएस की लेंथ मिल जाएगी, उसके बाद तुम सिंपली एससीएस की वैल्यू कैसे दे सकते हो, m प्लस एन माइनस एलसीएस, एंड दिस इज योर आंसर फॉर शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। आई होप यू गाइज गॉट द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो हम शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस प्रिंट कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तब तक के लिए just go and subscribe this YouTube channel that is Code Kitchen Newton School, and just go and check this newtonschool.co amazing programs that is Launchpad initiative, pay after placement program and master's degree program. Okay, thank you guys for watching this video.